ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੋਧੀ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਸਬੂਤ ਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ। ਸਮੁੱਚਾ ਈਰਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਆਰੀਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਨਾਤਨੀ, ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ। ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਠ ਗਈ ਤਲਵਾਰ, ਵਿਚਾਰਕ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ, ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਬਰ ਨਾਲ ਜੋ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਦੇ ਇਤਨੇ ਬੀਜ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਬਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਖੁਦ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਵੀ ਬਦਅਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਅਮਨੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਿਤਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ। ਪਰ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਅਗਰ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਝੂੰਕਾਰ ਜ਼ਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਮ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਚਾਰ ਵੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਦ ਆਮਦਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਾਚਾਰ ਵੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਦ ਆਮਦਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਠੋਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਰਾਗੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਪੂਰਾ ਸਨਾਤਨੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜ਼ੂ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੁਜ਼ੂ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਦਨ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। स्वामी रामानंद कहते हैं मन पिंगला हो गया, भज दौड़ मुक गई कि टिकदा ही नहीं सी किधरे, मन भजदा ही सी भजदा ही सी भजदा ही सी, पैर टुट गए ने ਇਹਦੇ, ਹੁਣ नहीं भजदा, पिंगला हो गया। ਹੁਣ जब मैं राम आखदा तो राम ਦੇ टिक जाता है, भज ही नहीं सकता, पिंगला हो गया। मिर्जा गालिब ने इसनों इस ढंग नाल बयान किया है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। गालिब कहते हैं मेरियां लत्तां जड़ियां टुट गईयां ने, इन्हां टुटियां हुई लत्तां दा, इन्हां टुटे हुए पैरां दा मेरे उत्ते बहुत वड्डा एहसान है। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं किधरे जान जोगा ही नहीं रहा, हुण मैं किधरे जा ही नहीं सकता, मेरे पैर ही टुट गए। मेरा चित न चलत मन भयो पंग, मन पिंगला हो गया, जाता ही नहीं किधरे, पिंगला किधर जावे, टुट गई लत्तां, मुक गए फुरने, हुण मन भी भटकना नहीं है। एक दिवस मन भई उमंग घत चंदन चोआ बहुत सुगंध। स्वामी रामानंद कहते हैं बड़ी उमंग सी, बड़ी अंदर तरंग सी, अंदर बहुत वड्डा प्यार का उछाल से, मैं चंदन रगड़ रहा सी। घस चंदन चोआ बहुत सुगंध, बुथेरियां सुगंधियां मैं खलेरियां, मैं चंदन रगड़िया, मैं धूप दीप जगाई, मैं सब कुछ कीता। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, ये सारी साजो सुनिगरी एकत्र करके मैं ब्रह्म की पूजा करन नूं चली। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही मान। जिहदी मैं बाहर पूजा करता रहा, जिन्हों मैं बाहर चंदन लांदा रहा, वो तो मैं अपने अंदर वेख लिया उसमें। कथ जाइए रे घर लागो रंग, घर दे ही रंग लग गया, हुण कित्थे जाइए, घर दे ही आनंद बन गया, हुण किहदी पूजा करिए। हुण घर दे ही ठाकर प्रगट हो गया। जिस दिन शरीर विच परमात्मा प्रगट हो जाता है, शरीर मंदिर बन जाता है, शरीर हरि मंदिर बन जाता है। भगत पीपा जी कह रहे हैं कि मेरा शरीर वाकई मंदिर बन गया। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाती। ये काया देवल बन गई। महाराष्ट्र के मंदिर नूं देवल कहते हैं। काया देवल बन गई, क्यों? देवता प्रगट हो गया, परमात्मा प्रगट हो गया, अकाल पुरख प्रगट हो गया। तो खैर मैं अर्ज करा, स्वामी रामानंद ते किथे बाबा फरीद, किधरे वैष्णो संप्रदा दे परमानंद, ते किथे सदना सैन, किथे भीखन। ये सांझ प्यार करके बन सकती है, विचार करके भी नहीं, तकरार करके भी नहीं, तलवार करके भी नहीं। ये मैं अर्ज कर रहा, क्योंकि सारियां दे विचार साझे करने बड़े औखे ने, बहुत औखे ने। जिथे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कह देंगे ने, मास मास पर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। गुरु नानक ये कह देंगे ने। भगत कबीर कहते कबीर सुरा पान भांग माछली, जो जो प्राणी खाए, तीरथ बरत अर दान किए, ते सबेरा साथ ल जाए। विचारां दे जमीन आसमान का अंतर है, तकरार नहीं है, इत्थे प्यारां दी सांझ है, प्यार दे तल दी सांझ है। और गुरबाणी नूं समझण लई बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बहुत वड्डा जिगरा। जिहड़े एक मत दे धारनी ने, किसी एक गल नूं पकड़ना है, दूजी नूं नहीं, वो कबीर दी इन्हां पंक्तियां नूं पकड़ लैंदे ने, दूजियां तीजियां नूं नहीं, दूजी तीजियां नाल कोई मतलब ही नहीं। और फिर जोर नाल आखणगे नहीं असीं ते गुरु दा हुक्म मनना है और गुरु दी ये पंक्ति है, तो उन्होंने ये आख्या जा सकता फिर गुरु की यह भी पंक्ति है, उठ फरीदा वजू साज सुबह नमाज गुजार, ये भी गुरु का हुक्म है, पढ़ सवेरे नमाज,
उजू साध मुसल्ला विचार, बेनमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदे चल ना आया पंजे वक्त मसीद। हुण 5 टाइम नमाज पढ़ तू ते 5 टाइम मसीद विच जा, गुरु का हुक्म है। गुरु कह रहे हैं गुरबाणी नूं समझण लई विचारण लई बहुत वड्डा जिगरा चाहिए, बहुत वड्डा जिगरा। प्यार की सांझ बन गई, कबूल कर ली गल कि फरीद तू नमाज पढ़ के भी पहुंच गए। ऐ कबीर तू वैष्णो संप्रदा दा जो है संत होके भी पहुंच गए। एक सज्जन ने किताब लिखी गुरु नानक देव जी महाराज दी इन्हां पंक्तियां नूं मूल ले जो है आधार बना के कि एते रस शरीर के कै घट नाम निवास, रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। ये मैं एक सुभाविक विचार थोड़े सामने रख रहे हाँ कि तुसी आखोगे विचारां दी सांझ किवें करनी, विचारां दी सांझ करोगे सारे भगत कुछ होर दी होर कह रहे हैं और बहुत वड्डे लफ्ज़ तो मैनूं नहीं मिल रहे कि मैं स्पष्ट कर सकां, लेकिन इतनी मैं अर्ज कर रहा एक भगत कुछ कह रहा दूजा कुछ कह रहा। फिर सांझ किस तरह बन गई? प्यार करके, विचार करके भी नहीं। विचार कित्थे दोवां दे एक होंदे ने, प्यो पुत्र दे एक नहीं होंदे, दो भरावां दे एक नहीं होंदे, दो भगतां दे भी परमात्मा के संबंध एक नहीं हो सकते क्योंकि वख-वख रस्तियां चों लंघे ने। एक नमाज पढ़ के पहुंचे है, एक पूजा करके पहुंचे है, एक चंदन रगड़ रगड़ के पहुंचे है, एक राम राम कह के पहुंचे है, एक बिठल बिठल कह के पहुंचे है। मंत्र वख-वख सन, रस्ता वख-वख से। तो जिस जिस रस्ते तो लंघे ने उन्होंने उस रस्ते की गल करनी भी इस रस्ते च इतने दरख्त सन, इतने खूह सन, इतने रस्ते झीलां आईयां ने, इतने दरिया आए ने। हो सकता है दूजे के रस्ते च कुछ होर आया हो, रस्ते जो वख-वख सन। वख-वख रस्तियां तो जिवें दरिया सागर तक पहुंचते हैं, वख-वख रस्तियां तो भगत परमात्मा तक पहुंचते हैं और पहुंचे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते दावे नाल कह दिता, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। साडा आई पंथ है कि सारियां दे नाल चलना ते सारियां नूं नाल लेके चलना, ये सांझ बिना प्यार तो नहीं हो सकती। जे तुसी आखोगे नहीं ये विचार नाल सांझ हुई है, विचार नाल ते बड़ी मुश्किल से। गुरु नानक दा गुरमंत्र वाहिगुरू होवे ते कबीर दा गुरमंत्र सतनाम है। नामदेव जपदे ने बिठल बिठल ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। जयदेव जपदे ने गोबिंद 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 देत जप नर सकल सिद्ध पदन, जयदेव आयो तस्व पटंग भवभूत सर्वगतन। एक चंदन रगड़ के पूजा कर रहे हैं स्वामी रामानंद, एक मुसल्ला बिछा के नमाज पिया पढ़ता है। विचारां दी ते बहुत वड्डी अंतर है, बहुत वड्डा। इबादत के ढंग दे फर्क है, तो इबादत के ढंग दे फर्क तां हो सकता है जो विचारां दे फर्क है। इन्नी मैं अर्ज कर दें, वरना तो इबादत एक होगी। इबादत की ढंग दे जिहड़ा फर्क है ये तो विचार करके है, तो विचार तो सारे वख-वख ने। तो मैं फिर अर्ज करा विचारां करके भी सांझ नहीं बनती, इस वास्ते सनातन मत दे सांझ ना बन सकी। विचारक ते महान पैदा होए, गौतम महान विचारक, कपिल महान विचारक, पतंजलि महान विचारक ने, ऋषि वेद व्यास महान विचारक ने, जैमिनी अपनी थां से महान विचारक है। ये 6 ऋषि एक दूजे नाल सहमत नहीं सन। इसे कीर्तन सोयल आप सरवण कर गए हो कि 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। 6 घर ने, 6 शास्त्र ने, इन्हां दे गुरु 6 ने, ते इन्हां दा उपदेश भी 6 तरह का है, एक तरह का नहीं है। विचारां वख-वख ने, झगड़े नहीं हो, विचार वटांदरा विचारक सन ना। क्योंकि जिथे तकरार शुरू हो जाए समझ लो विचारक नहीं है, वो कुंड बुद्धि का है, वो मोटे दिमाग का बंदा है, उन्हें तकरार शुरू कर दी है। विचारक का मतलब है जिथे तक मेरी विचार साथ देंदी है मैं उहदे नाल चलांगा, अगे नहीं चल सकती तो उस तो अगे जिसकी विचार है मैं कबूल कर लवांगा, मैं प्रवान कर लवांगा। विचारक का यह मतलब है। पर हुण मेरी विचार अगे चलती नहीं तो इनू मैं चलाना चाहना है, चलती नहीं तो हुण तकरार से आमादा हो जाए, लड़न से आ जाए।
जबरदस्ती कबूल कराना चाहे तो अगला उसके विचार को रोक पा दे तो तकरार शुरू हो जाए, ये मोटे दिमाग की गल है, अधूरे विचारक की गल है। ये 6 ਦੇ 6 ऋषि अपनी थां ते पूर्ण सन, तकरार नहीं की। कपिल ने पतंजलि नाल तकरार नहीं की, पतंजलि ने गौतम नाल तकरार नहीं की, ते गौतम ने जैमिनी दे नाल कोई तकरार नहीं की, जैमिनी ने कणाद दे नाल कोई तकरार नहीं की, ते कणाद कतई नहीं लड़े व्यास दे नाल, हालांकि 6वें इको ही टाइम दे चोए ने और 6 शास्त्र वख वख गल्लां, मजाल है किधरे तकरार हुई होवे, लेकिन इबादत के ढंग सारे वख वख पे दसते हैं। इस वास्ते हिंदू धर्म के सनातन मत में अनेक शाखा पैदा हो गई, अनंत शाखा, क्योंकि ऋषि मुनिया ने वख वख जो है गल आखी। और ये सारी जिहड़ी वख वख गल समुचे जगत विच प्रचलित सी परमात्मा प्रति, गुरु नानक ने सारी कबूल कर ली। ये तां ही हो सकती है कि बहुत वड्डा प्यार का कोई सागर होवे हिरदे विच, तां ही सारी नदियां नूं थां मिल सकती है, वरना सारिया नदियां नूं कित्थे थां मिल, छपड़ी दे थोड़ी थां मिल सकती। किसी के अंदर प्यार होवे इतना जिवें एक छपड़ी है, तो उहदे कोई दरिया समा सकदा? पृथ्वी दे उत्ते बहुत सारे दरिया ने, सारे दरियावां नूं अपने अंदर थां देनी है, सागर दे सकदा है। जिथे प्यार का सागर होवे उत्थे ही ये सारिया नदियां समा सकदियां। बाबा फरीद एक नदी है, स्वामी रामानंद एक नदी ने, कबीर एक नदी है, फरीद एक नदी ने, परमानंद है, त्रिलोचन ने, वर्ष के सारे आए ने, समा गए ने, कबूल ने, प्रवान ने। ये तां ही हो सकता है कि हिरदा सागर की तरह हो, छपड़ियां विच कदी समा सकदियां ने नदियां, कतई नहीं। पर वजब की गल है, गुरु नानक का हिरदा सागर की तरह, सिख का हिरदा कई दफा देखीदा निक्का जिहा टोया ही है और कुछ नहीं, टोबा ही है, कुछ भी नहीं। बड़ी तंग दिली, बहुत तंग दिली कई दफा देखने को मिल जाती है, नफरत के विचकरे भी मिल जाते हैं, प्यार की सांझ भी आपस में नहीं मिलती। ते पुराना अज्ञानी ब्राह्मण का छूआ छात भी देखने को मिल जाता है, ते अज्ञानी मौलवी की नफरत भी देखने को मिल जाती है। मौलवी दे नफरत सी भी काफर ने, काफर ने, ते ब्राह्मण दे छूआ छात सी, ये हथों नहीं लेना है, ये हथों खाना नहीं, पीना नहीं, ये हथ का भोजन प्रवान नहीं। तो ब्राह्मण का छूआ छात ते मौलवी की नफरत कई दफा मैं देखना एको ही सिक्के च आ गई है, एक दे हैरानगी हो जाती है भी ऐसा क्यों हो गया। गुरु नानक नूं नहीं समझिया गया, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी नूं नहीं समझिया गया। ये तो प्यार का घर से, ये तो एक सागर से जिथों सारिया नदियां आईयां ते लीन हो गई, वख वख रस्ते चों आईयां लीन हो गई। इस वास्ते मैं अर्ज करा, विचारां दी तुसीं सांझ लभना चाहोगे, कई थां ते कबीर ते गुरु नानक दे विचारां दी सांझ नहीं मिलेगी। जिथे कबीर स्पष्ट रूप में कह देंगे ने, कबीर सुरा पान भांग माछली जो जो प्राणी खाए, तीर्थ बरत अर दान किए ते सबे रसात लजाए। उत्थे उच्ची आवाज नाल गुरु नानक कह देंगे ने, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। साग भी मास है, मास भी साग है, सब दे जीव है। कि कबीर की बाणी नाल, कबीर के विचारां नाल इसनूं किसी होर रूप में ना लेना भी विरोधी विचार मौजूद ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। दरअसल इस ढंग नाल पहुंचे है कबीर, जिस ढंग नाल पहुंचे उसने अपने ढंग नाल गल करनी। जिस ढंग नाल रविदास पहुंचे ने, रस्ते च नहीं रहे, पहुंचे ने, सारे ही पहुंचे ते पहुंचे हुए पुरुषों के बचन ने, पर बचन उन्होंने रस्तियां दे कीते ने जिस रस्ते चो लंघ के आए। परमात्मा च लीन हो गए, फिर कोई गल नहीं, फिर की नदी ने गल करनी, नदी सागर हो गई है। हुण उसने की गल करनी है, हुण तो गल खो गई। क्या कहिए किछ कहन ना जाई, हुण तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हुण तो कुछ बोलिया नहीं जा सकता, हुण की आखेगा। तो सब ये रस्ते दीयां गल्लां ने जिथों जिथों लंघ के आए ने भगत जन। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बचनों के आधार पर जो ये प्रचार है उसका दरअसल सही रूप नहीं लिया गया। रस सोना रस रूपा कामण रस पर मलकी वास, रस तेजा रस घोड़े मंदर।
रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। बई शरीर दे इतने रस ने ते हुण नाम दा रस वसे ते किस तरह वसे। ते रस मीठा रस मास, मास नूं लैके इंज प्रचार। पर हुण कौन दसे उपर सतगुर ने लिखिया है आरंभ ते इत्थों है रस सोना, जिहदा सोने दे च रस है धन दे। हुण घर दे सोना पे चुक के परे मारीए, मास सब तो अखीर दे जिक्र है। तीन पंक्तियां दे श्लोक नूं समझना है। रस सोना, सोना जरूरत मात्र है ठीक, पर सोने च रस है, सोना ही रस है। जिस चीज विच बंदे दा रस होवे हर वक्त याद आवेगा, पक्की गल। जिन्हों हर वक्त गहने याद आवन, सोना याद आवे, सोना रस है, तो रोक खड़ी हो गई। इस तरह के मनुख के अंदर हुण नाम का रस नहीं वध सकता। रस सोना, रस रूपा चांदी। अगर रस बन गया, गुजरात का इलाका काठियावाड़ कच्छ, अज भी उत्थे अद्धे अद्धे किलो दे चांदी दे बकायदा कड़े पैरों च पाए जाते। ते हुण बेड़ियां पवाउण की लोड़ ही नहीं। अद्धा अद्धा किलो दे दोवां पैरों च अगर कड़े पाए हुए हैं तो इन्हां नूं बेड़ियां पवाउण की की लोड़ है। आपे हथकड़ियां ते बेड़ियां, सारा हथ 2-2 किलो चांदी नाल भरिया होवेगा। इन्ना बोझ, ये हथकड़ियां बन गई। पर हथकड़ियां भी उदों प्यारियां लगदियां ने जदों गहने होवन, उन्हां नूं गहने समझ लिया जाए, उन्हां नूं भूषण समझ लिया जाए। तो भूषण जान के 3-3, 4-4 किलो वजन दे वो गहने पाई फिरदियां ने चांदी दे। अज भी रस बड़ा उसदे, त्याग नहीं सकदियां भी इन्ना बोझ खामा खा चुके आया। पर रस साहिब कहते ने रस सोना रस रूपा कामन रस। अगर पुरुष का स्त्री दे रस है तो स्त्री का पुरुष दे रस है, और ये रस इतना प्रधान हो के अठे पैर यही चिंतन है, ये भी रोक खड़ी हो जाएगी। परमल की वास रस से जा रस घोड़े मंदिर रस मीठा रस मास। मकान दे रस है, अठे पैर मकान याद आ रहे। हुण हर एक नूं मकान दिखांदा है, आप भी बार बार मकान देखदा है। सुपनियां दे भी बस मकान ही वसिया जिहड़ा इसने बनाया, ते रस बन गया। ते हर वक्त जे मकान याद आउंदा है तो राम कित्थे याद आवेगा, नाम कित्थे याद आवेगा। गल खत्म। जिहड़ी चीज बार बार याद आउंदी है उहदे च उसदा रस है, जिहड़ी चीज बार बार याद आउंदी है उहदे च उसदा स्वाद है। रसे जा रस घोड़े मंदर रस मीठा रस मास। कईयां वास्ते बहुता रस मिठे च भी आउंदा है, मिठे तो बिना नहीं रह सकते, बहुता ही खाणगे मिठा, मिठियां चीज़ां च बहुता ही रस है। तो जो हुण बहुता मिठियां चीज़ां दे च रस है तो यह भी रोग खड़ा हो गया। इस रस ने भी अगे सुरत नूं नहीं जाण देना। ते रस मीठा रस मास, मास इतना रस बन गया है हुण भोजन बिना मास तो है ही नहीं। ते मास का अठे पैर चिंतन है, मास नूं चेते किया जा रहा है। मास तो बिना होर उसनूं कुछ भोजन दिखाई नहीं देता। ते मास रस इतना प्रधान हो गया है कि हर वक्त याद दे च वस गया, रोक खड़ी हो गई। सिर्फ एक अंग नूं नहीं लेना, इस सारे श्लोक नूं लेना है। रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की वास। रस से जा रस घोड़े मंदिर रस मीठा रस मास। एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। पर गुरमत तो पूछिए तो सही, फिर की करिए, आखिर खाण पाण बारे की करिए। साहिबा ने कोई फैसला कर देता है, बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिस खाने नाल तेरे तन विच रोग पैदा होण, तेरे तन दे अनुकूल नहीं, मन विच विकार पैदा होण, ना खा, गल खत्म। फैसला कर देता। किसी वास्ते दुध भी हानिकारक हो सकता है, कई वास्ते दही भी हानिकारक हो सकती है। जीव का मसला लोगे तो दुध दे भी जीव है, दही दे भी जीव ने, बनस्पति दे भी जीव है। कोई ऐसी बनस्पति नहीं जिहदे च जीव नहीं। दाने जो असी खांदे हां अन्न जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोय। पानी जो असी पींदे हां पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोय। जीव सब दे अंदर है। जिस चीज विच जीव नहीं उस तो जीवन भी नहीं मिल सकता। गुरु नानक का फैसला जियां का आहार जी खाना है कर। जीव जीव का आहार है, इस तो बिना जीवन नहीं मिल सकता। जिस चीज विच जीवन नहीं उस तो जिंदगी भी नहीं मिलेगी।
उस तो जीवन भी नहीं मिलेगा, रब्बी सिद्धांत। पर मैं अर्ज करा थानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस तरह दी विरोधी विचारां मिलणगियां, पर विरोधी विचारां दे तकरार नहीं है, टकराव नहीं है, प्यार है, कबूल, एक दूजे नू कबूल प्रवान, प्यार दा धर्म है। गुरमत प्यार दा धर्म है। इस वास्ते तलवार नाल गल मनानी है, इसनू सतगुर ने नहीं कबूलिया, ते विचार नाल गल मनानी है, इसनू भी नहीं, प्यार। इस वास्ते सतगुर बेनती कर रहे ने, जोदड़ी कर रहे ने, करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला बेनती कर रहे हैं, जोदड़ी कर रहे हैं, जबर नहीं। ये नहीं कि तू नमाज नहीं पढ़ी, इस्लाम के झंडे थले नहीं आया, काफर। ये नहीं कि रमजान के दिनों च अज तू रोटी किधरे खा ली है तो जुतियां पै जांदियां हिंदुस्तान के मुसलमान मुसलमान मारन लग पैंदे ने। तू रमजान के दिनों च पानी पी लिया, तू रमजान के दिनों रोटी खा ली है, क्यों खा ली है? जबर, तलवार का धर्म। ते हिंदू मत अज भी विचार वटांदरे दे उत्ते बहुता खड़ा है। इस वास्ते बथेरियां शाखावां इन्हां च नवीआं तो नवीआं जन्म लैंदियां ने। गुरमत दे च प्यार प्रधान है, संबंध प्यार तो बिना जुड़दा ही नहीं। इस वास्ते साहिब कहंदे ने औगणां दे बंधन ऐ मन प्यार तो बिना नहीं टुटणगे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, पूर्ण प्रेम की लेस बिना सिख पंडित गावत जावत हारी। साहिब कहते पूर्ण प्रेम तो बिना, प्रीत तो बिना बड़े बड़े पंडित, दार्शनिक, फिलासफर एवं व्यर्थ जिंदगी गवा बैठते हैं। ते खालसा कौन है? गुरु गोबिंद सिंह जी का फैसला, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे। पूर्ण प्रेम, मुकम्मल प्रेम। पूर्ण प्रेम नाल ही पूर्ण नाल रिश्ता जुड़ेगा, अधूरे प्रेम नाल नहीं। सिर्फ परिवार का प्रेम है तो यह भी संबंध है परमात्मा नाल, पर परमात्मा के कुछ हिस्से नाल संपूर्ण नहीं। संसार के कुछ कुछ हिस्से नाल प्रेम है, बाकियां नाल नहीं। तो जिथे जिथे प्रेम है उत्थे उत्थे संबंध है। संबंध सारे परमात्मा ने, ईश्वर दे ने, लेकिन ये पूर्ण प्रेम नहीं, अधूरा प्रेम है। पिता नाल प्यार है, पड़ोसी नाल नहीं है। अपने बच्चों नाल प्यार है, पड़ोसियों नाल नफरत है। एक भरा नाल प्यार है, दूजे भरा नाल नहीं है। अगर इस तरह का है तो अजे एक पूर्ण प्रेम नहीं है। पूर्ण प्रेम समग्र प्रेम सारियां नाल। खालसा मनुख उसे दिन आउंदा है, पवित्र मनुख उसे दिन आउंदा है जिस दिन पूर्ण प्रेम का अंदरों जन्म होवे। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। पूर्ण प्यार उसके अंदर पैदा हो जाए, उस तो बिना खालिस नहीं हो सकेगा, उस तो बिना पवित्र नहीं हो सकेगा। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने धर्म की नींह प्यार ते रखी। नींह प्यार है, ऊपर विचार आने से, ऊपर मर्यादा है, ऊपर फिर तमाम नियमावली है। मूल बुनियाद जेड़ी है वो प्यार से खड़ी है, क्योंकि संबंध बिना प्यार तो जुड़ते ही नहीं। दो विचारक भी आपस में टुटे रहणगे अगर अंदर प्यार नहीं। इस वास्ते मैं अक्सर देखदा, दो ज्ञानी लड़ पैंदे ने, दो दानी लड़ पैंदे ने, दो सेवा करने वाले भी लड़ पैंदे ने। हुण इक्को तरह की सेवा करते पे ने, गुरुद्वारे लड़ पैंदे ने। जोड़े झाड़ते जोड़े मारन लग पैंदे ने। कड़छियां नाल जो है दाल वंडते वंडते अगलियां दे सिर तोड़न लग पैंदे ने, अगलियां दे सिर च दाल पाण लग पैंदे। मैं तो ऐसा देखिया, गल पुट्ठी पै जांदी। हालांकि दोवें ही सेवा कर रहे हैं, संबंध नहीं जुड़िया। दो सेवादारां दा भी संबंध टुटिया रह सकता है, दो ज्ञानियों का भी संबंध टुटिया रह सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी में लड़ते देखे ने, झगड़ते देखे, कारण प्यार नहीं। बड़े बड़े संत में लड़ते देखे ने, बड़े बड़े प्रबंधक में लड़ते देखे ने। सेवा तो कोई जिया कर रहे हैं, संबंध नहीं। संबंध बिना प्यार तो जुड़ता ही नहीं। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। सुनिए मनिए मन कीता भाव, तू सुने है अजे सफलता नहीं मिली, तू मन भी लिया है अजे भी गल नहीं बनी, जिन्ने चिर तक अंदर भाव नहीं पैदा होया।
प्रेम नहीं पैदा होया। भाव प्रेम सुनिया व्यर्थ चला गया। सुनना तो एक बीज है, ते भाव की है फल, रसदायक फल जिहदे च मिठास है, ते बीज फल तक नहीं पहुंचया तो यात्रा ते निष्फल चली गई। बोया होया बीज निष्फल चलिया गया। तेरा सुनिया होया प्यार तक नहीं पहुंचया, प्यार अंकुरित नहीं होया, प्रफुल्लित नहीं होया, तो पुरखा तेरा सुनिया होया भी व्यर्थ चला गया। सुनिए मनिए मन कीता भाव। संबंध प्यार नाल जुड़दा है। थोड़ा जिस जिस नाल संबंध है किस कारण करके है? प्रेम करके। और किसी कारण करके प्यार नहीं जो है संबंध नहीं जुड़ सकता। एक तरह का धंधा कोई करे, दोवां दी दुकान इको जिहां दी होवे ते मैं कहनी संबंध नहीं जुड़नगे, प्यार नाल संबंध जुड़नगे, नफरत बनी रहेगी। एक तरह की किरत करने वाले, एक तरह के विचारक, एक तरह के दार्शनिक, कोई संबंध नहीं जुड़ेगा। संबंध जुड़ेगा प्यार नाल। और इस ढंग नाल तुसीं समुचे संसार ते निगाह मारो, उत्थे उत्थे साडा संबंध है जिथे जिथे प्यार है। ते जिस दिन प्यार पूर्ण रूप में प्रफुल्लित होता है उस दिन परमात्मा नाल संबंध जुड़ता है। ऐसा मनुख कह उठता है कि सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। हुण ये नहीं कि एक सज्जन है तो दूजा नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ सज्जन ने तो कुछ विरोधी ने, नहीं। सबको मीत हम आपन कीना। हुण सारे मित्र ने, साडी तरफों सारे मित्र ने, अगले की मर्जी वो मित्र समझता है कि नहीं। असी सज्जन, असी किसी वास्ते दुश्मन नहीं। हम सब ना के साजन, असी हर एक दे वास्ते सज्जनता का जज्बा रखते हैं। मेरे वास्ते सारे ही हुण मित्र ने। सतगुरुदेव जी महाराज इस ढंग नाल पै प्रमाण करते हैं कि पूर्ण प्रेम तां ही हो सकता है, उस तो बिना नहीं। और इस तरीके के नाल ही परिपूर्ण परमात्मा नाल संबंध जुड़ सकता है। तो सूफी भी इस गल नूं मनदे ने कि जापदा है इस्लाम तो बागियां का एक धड़ा। इस वास्ते इस्लाम ने सूफियां नूं कदी कबूल नहीं किया। शमस तबरेज की पुट्ठी खल लाई गई मुल्तान दे, ते सरमद नूं कतल किया गया दिल्ली दे औरंगजेब के हुक्म नाल। जिथे जिथे बादशाहां का जोर पिया उन्होंने सूफियां नूं मारिया, कतल किया। मंसूर नूं भी कतल किया गया, सूफी फकीर से। अनल हक कहने लग पाया, जिस तरह कुछ सनातनी ऋषियों ने कह दिता अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म तक पहुंच गया, ब्रह्म हो गया। तो किसी हद तक ये बोल माड़े तो नहीं। भगत कबीर कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछानी। हुण राम ते कबीर एक हो गए। हुण की आखी कबीर बड़ा हंकारी है, कहंदा पे मैं राम वर्गा हो गया। राम कबीरे भेद ना भाई, नामे नारायण नहीं भेद। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल, गुर कृपा जै नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। गोबिंद विच लीन हो गए, गोबिंद का ही रूप हो गए। मंसूर ने नारा लाया अनल हक, मौत के घाट उतार दिता गया। सरमद ने यह नारा लाया, उहदे बड़े कीमती कुछ बोल ने। वो कहंदा सरमद बाकूच है इश्क बदनाम छुड़ी। कहंदा जब मैं विचारक से, शरई से, दार्शनिक से बदनाम नहीं होया, तो जिस दिन दा रब दे प्यार दी गली विच मैं आया बदनाम हो गया। लोकी नफरत नाल वेखण लग पए। ते सूफियां दा ये दावा है कि 1000 साल इबादत कुनद निमाजी नेस, कसे को इश्क नदारद खुदा राजी नेस। साफ कह दिता, तू एक साल नहीं 1000 साल इबादत करके वेख ले। 1000 साल नमाज पढ़, नमाजी नहीं है तुम, कबूल नहीं होगा। 1000 साल इबादत कुनद नमाजी नेस, कसे को इश्क नदारद खुदा राजी नेस। तेरे अंदर प्यार नहीं पैदा होया, खुदा नहीं राजी तेरे से। गल खत्म। तू ये ना समझे कि खुदा तेरे से राजी है, संबंध ही नहीं जुड़िया की राजी है। पढ़ी जा नमाज, पढ़ी जा, तो कपट रख के भी नमाज पढ़ी जा सकती है।
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਫ਼ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿੜਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਘੋਟਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਸੇ ਕੋ ਇਸ਼ਕ ਨਦਾਰਦ, ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। सूफी कहते ने शेख सादी साहब, जितने चिर तक प्यार नहीं पैदा होया खुदा राजी नहीं है तेरे से, अकाल पुरख राजी नहीं है। तो सूफियां की यह गल प्रवान ना हुई। सरमद कहते ने, जिस दिन का मैं प्यार की गली च आया, तो मैं इतनी अर्ज करा, एक पागल नूं तुसीं वेखोगे ना, तो एक प्यार विच भेजे हुए मनुख नूं वेखोगे, दोवें इक्को प्रतीत होणगे। कभी बगौर मुताला करके वेख लेना। कुछ सज्जने जी भी कहते हैं, एक शराबी नूं वेखीए जिहदी अखां दे सरूर है, खुमार है, इस तरह एक प्यार विच भिजे हिरदे वाले नूं वेखीए, उहदी अखां 'च भी कोई सरूर ते खुमार होवेगा, भुलेखा पै जाएगा इहदे शराबी किहड़ा, इहदे भगत किहड़ा। अंदाजा लाना बड़ा औखा हो जाएगा, क्योंकि दोहां कोल सरूर ते है। फर्क सिर्फ इतना है, एक दे कोल बेहोशी दा सरूर है, एक दे कोल होश दा सरूर है, इन्ना फर्क है। एक दे कोल बेहोशी दी खुमारी है, एक दे कोल होश दी खुमारी है। खुमारी गुरु नानक कोल भी सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब दे इस खुमारी का। बहुत सारे शब्द ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे और भगत कबीर जी दे इस खुमारी के संबंध। ये खुमारी किवें तारी होंदी है, तो हुण खुमारी दे लीन एक भगत बैठा होवे ते खुमारी दे लीन एक शराबी बैठा होवे, किस तरह अंदाजा लाओगे? खुमारी ते दोहां कोल है। ते मैं ये अर्ज करा, दोहां दे बोल मेल भी नहीं खाणगे, ना शराबी दे ते ना भगत दे। दोहां दे बोल भी मेल नहीं खाणगे। पागल दे ते भगत दे, बेहोश बंदे दे ते परम होश दे बैठे बंदे दे, दोहां दे बोल मेल नहीं खाणगे। जिहड़ा शराब दे बेहोश है या जिहड़ा पागल है, ਉਹਦੇ बोल इतने नीवें आउणगे, पैरां दे थल्लों लंघणगे, ते जिहड़ा परम होश विच बैठा है, भगत प्यार विच भेजिया होया, ਉਹਦੇ बोल इतने उच्चे ने सिर दे उपरों लंघणगे। दोवां नाल तालमेल नहीं बैठेगा। इस वास्ते भगत नाल तालमेल बिठाना बड़ी औखी गल, ते साफ गल कह दी सतगुरां ने कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, नहीं जुड़ेगा। संसारी आम संसार, दरमियाने तल ते जीण वाला मनुख, ਉਹਦਾ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ नहीं बैठे। गल बड़ी उच्ची। तो सरमद कहते हैं, जिस दिन का मैं प्यार की गली चो लंघिया बदनाम हो गया। पहले मैं तकरार करता सी, विचार करता सी, कर्म कांडी सी, लोगों ने मैनू प्रवान किया, मैनू इज्जत दी, मैनू सन्मान दिता, पर जिस दिन का मैं प्यार की गली च आया बदनाम हो गया। सरमद बाकू चाहे इश्क बदनाम शुदी, अज दीने यहूद सुए बा इस्लाम शुदी। कहता हैगा ते मैं यहूदी से किधरे आया सी इसराइल तो, फिर ईरान अफगानिस्तान तो लंघ के हिंदुस्तान पहुंचा। कहता सूफियां की संगत करके मैं इस्लाम कबूल कर लिया। हैगा मैं यहूदी से, मालूम ना शुद्ध ए खुदावंद अहमद, बरगश्ता बसूए लक्ष्मण और राम शुदी। कहते उन्हों की संगत च रह के भी जब कुछ नहीं मेरे पल्ले पिया, तो मैं उत्थे जा बैठा जिथे राम ते सीता की गल हो रही है। हुणे औरंगजेब बर्दाश्त थोड़ी कर सकता सी कि सूफी फकीर मुसलमान मंदिर च जा बैठे, गीता की गल सुने, राम की गल सुने, कृष्ण की गल सुने। औरंगजेब नूं कबूल नहीं हुई। ते सरमद दे जबान दे ते कई तरह के नाम आउंदे सन। अल्लाह अल्लाह भी कह दिंदा सी, राम राम भी कह दिंदा, कृष्ण कृष्ण की रट भी ला लैंदा सी, मधसूदन मधसूदन भी कह दिंदा सी, गोरख गोरख भी कह दिंदा सी। ते इस तरह के ना एक मुसलमान की जबान तो निकलन औरंगजेब नूं कबूल नहीं। वो अपने दायरे च रहन वाला ते अपनी दुनिया च रहन वाला गुरु नानक देव जी महाराज का हिरदा प्यार नाल भेजे होया। आप कहंदे ने, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसाइया, कोई अला है। हे प्रभु, तैनू कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है, तैनू कोई राम राम कह रहा है, तैनू कोई गुसाई गुसाई कह रहा है, तैनू कोई खुदा खुदा कह रहा है, तैनू कोई हरी हरी कह रहा है। ये सब तेरे नाम ने, बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है,
सदके जाने ये जितने भी तेरे नाम ने ये कोई प्यार नाल भिजिया होया हिरदा कह सकता है, तकरार ते विचार ऐसा नहीं कह सकता। ये प्यार का धर्म, बुनियाद प्यार, उपर विचारां ने। महल विचार का जरूर खड़ा है लेकिन नहीं प्यार से खड़ी। संबंध प्यार नाल जुड़ते हैं। तो प्यार दे तलवार नहीं आती, प्यार दे जबर नहीं आता, बेनती आती है, जोदड़ी आती है। जिस नाल थोड़ा प्यार होवे, कौड़ा वचन बोल सकोगे, उससे जबर कर सकोगे। बंदा किस नूं ठगदा है, बंदा किस नाल जबर नाल पेश आउंदा है, बंदा किस दे नाल तकरार करता है, जिहदे नाल प्यार कोई नहीं। जिहदे नाल प्यार है उत्थे ते बड़ा मिठा बोलता है बंदा, जोदड़ी च बोलता है, बड़े सोहणे हलेमी च बोलता है। पर जिहदे नाल कोई गूढ़ा संबंध नहीं, उत्थे बंदा आकड़ जाता है, बचनां दे कठोरता आ जाती है, सुभाव दे कठोरता आ जाती है, क्योंकि उहदे नाल कोई प्यार ही नहीं है। जिहदे नाल प्यार है बचनां दे हलेमी आ जाएगी, निर्माणता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिथे जिथे जगत नूं उपदेश करते हैं, बेनती के रूप, जोदड़ी के रूप, हाथ जोड़ के बेनती करके। तो ये सुहेले का 5वां शब्द आप जो है श्रवण करो। सतगुरुदेव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं, करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला, है मेरे मित्र। तो समुचे जगत नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज इत्थे मित्र कह रहे हैं। ते मित्र उही कह सकता है सारे जगत नूं जिहदा हिरदा मित्रता नाल भरिया होवे। सबको मीत हम आपन कीना, ते इतने मित्रता नाल भरिया होया ओ ही हो सकता है जिहदे अंदर पूर्ण प्रेम है, अधूरा नहीं। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, मुकम्मल प्रेम, पूर्ण प्रेम, हिरदा पूर्ण प्रेम नाल भिजिया होया, भरिया होया, कोई इस ढंग की जोदड़ी कर सकता है, कोई इस ढंग की बेनती कर सकता है। संत टहल की वेला, है मेरे मित्र, ये वेला है संत की सेवा करने की, साधु की सेवा करने की वेला है। वेले तो मुराद की लईए, सवेर का, दोपहर का, शाम का वेला नहीं। ये मनुखा जन्म एक अवसर है, एक वेला, एक तेन अवसर मिले। ये मनुखा जन्म तू पशु जून दे बनस्पति दे ऐसा नहीं कर सकता। एक तेन अवसर मिले, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार घट भी तर तू देख विचार। एक अवसर मिले, अवसर चुका हथ ना आवे, पहला जन्म गवाया। सतगुरुदेव जी महाराज इस मनुखा जन्म नूं पौड़ी भी कहते हैं। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। कोठे ते चढ़न वास्ते एक पौड़ी मिली है, परमात्मा तक पहुंचने वास्ते एक पौड़ी मिली है। केड़ी? ये मनुखा जन्म। छोटियां छोटियां पौड़ियां ते चढ़ चढ़ के तू हुण मनुखे जन्म की पौड़ी ते खड़ा है। पर हुण जे तू संभलिया ना, तू कदम अगे ना पुटिया, तो फिर इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। इस पौड़ी का सही इस्तेमाल करें। पौड़ी दो काम आउंदी है, चढ़न दे भी ते लैण दे भी। मनुखा जन्म विच बंदा चाहे ते देवता बन सकता है, चाहे ते बंदा पशु बन सकता है, पशुओं तो भी थले जा सकता है। पौड़ी दोवें काम आउंदी है, उपर चढ़न दे भी काम आउंदी है, लैण दे भी काम आउंदी है। इसनूं सतगुरु ने पौड़ी कह दिता। चाहे ते तू देवता बन सकता। लोकी तेनू वेख के कहणगे कि बंदा नहीं है ते देवता, ये मनुख नहीं ये ते रब दा रूप चढ़ गया। और जे तू किधरे लेना शुरू कर दिता तो लोकी कह देंगे बंदा नहीं ये ते मेरा ही पशु, शैतान, दैंत है। पौड़ी है, बंदा ले भी सकता है, बंदा चढ़ भी सकता है। देखने दे चाया इस पौड़ी ते बंदे ले रहे हैं, बहुत उतर रहे हैं। चढ़ाई जरा औखी है, चढ़ना है ना, तू चढ़ना हर बंदे का काम नहीं। बहुत सारिया पौड़ियां होवन ते चढ़न लगे वाकई चंगे चंगे रह जाते हैं। मैनू अपनी जिंदगी विच 2-3 तजर्बे इस ढंग दे होए। पहली दफा रेठा साहब गए, उदों कुछ लखनऊ के सिंहदास के नाल सन।
ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਸੀ, 16 ਮੀਲ ਦੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰ, ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਪਹਾੜ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਤਰਨਾ, ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਪਿੱਪਲ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਈ ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਛੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਕ ਗਿਆ, ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ, ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਅਜੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਾਈ ਸੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੌਂ ਹੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਕ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਣ ਆ ਜੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਆਖੀ ਹੁਣ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ 6 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਲਾ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਔਰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਜਦ 1000 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 1000 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਉੱਪਰ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ 1000 ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪਈਏ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਠੰਡ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰਬਤਰ ਥਕੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਕਦੀ ਚੜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਟ।